kids, how are you all? Hope you all are very fine at home and studying well also. So today we'll take chapter number 2 of our supplementary reader, that is An Alien Hand, and the chapter's name is Bringing Up Kari. So all the things I am going to explain you in this chapter, and in live class we'll discuss about question answers, and if you have any doubt then we will make them clear in live classes. Okay, so now every one of you carry a pencil in your hand to underline the hard words, and I want all of you to find their meanings from dictionary, and I will ask you in live class for the words. Okay, so pay attention everybody. Kari the elephant. Bringing up Kari. Kari is an elephant. Okay, so before starting the story, few points are given that I am reading. Kari, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. Okay, Kari doesn't eat much, just about 16 kg of delicious twigs a day. Playful and sensitive, Kari saves a boy from drowning. So these are the points that we are going to cover in the story. It is a story about an elephant और उसके मालिक के बारे में. A boy like 9 years age का एक बच्चा जो उसकी look after करता था, care करता था. Kari was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. He seemed to remain that high for nearly 2 years. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. He lived in a pavilion. Pavilion को underline करेंगे. Under a thatched roof. Thatched को underline करेंगे. Which rested on a thick tree stump so that it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved about. आई वॉज ऑफ 9 years old एंड कारी ओनली 5 months, तो उसको मुझे दिया एंड मैं उसकी मेरे को अच्छे से याद है कि मैं उसकी बैक पे पहुंच जाता था इफ़ आई स्टैंड ऑन माई टिप टो. ठीक है, 2 साल तक उसकी हाइट ऐसी ही रही. हम दोनों साथ साथ बढ़े, लेकिन मैंने कभी अंदाज़ा नहीं लगाया कि वो इतना ऊंचा कैसे हो गया, उसकी हाइट क्या हो गई है. उसका एक पवेलियन बना हुआ था. पवेलियन बोलते हैं एक टेंट शेप उसका बना हुआ था, थैच्ड रूफ का. ये जो गाँव में नहीं रहती हैं जो वो रूफ रहती हैं स्टिक्स वाली, उस रूफ का बना हुआ था जहाँ पे वो रहता था. और वो थिक ट्री स्टम्प्स पे जो उसका बेस था, जो उसके पिलर्स जिसको हम बोलते हैं, वो मोटे ट्री के स्टम्प्स बना रखे थे ताकि वो जब कारी इधर उधर मूव करे तो वो गिर ना जाए, उसकी छत जो होती है. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. कारी डिडेंट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद. उसको 40 pounds ऑफ ट्विग्स रोज के चाहिए होते थे. ट्विग्स को अंडरलाइन कर लेंगे. ट्विग्स यानी घास, ये जो खाने वाला होता है, ग्रीन ग्रास like. Okay, every day I used to take him into the river in the morning for his bath. रोज मैं उसको नहाने के लिए लेके जाता था रिवर पे. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. 1 घंटे तक मैं उसकी पूरी बॉडी को मिट्टी से, सैंड जो होती थी उससे रब करता था. After that he would lie in the water for a long time. और उसके बाद वो काफ़ी देर पानी में बैठता था. On coming out his skin would be shining like ebony. ebony ट्री होता है, ठीक है ना, शाइनिंग ट्री होता है ebony. He would squeal. स्क्वील को अंडरलाइन करेंगे, चिल्लाता था. विद प्लेजर, खुशी में. प्लेजर को अंडरलाइन करेंगे. एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated an elephant will not touch it. ओके, तो ये जो हैचेट है ये क्या है, ये एक एक्स है, कुल्हाड़ी है जो हमें बहुत शार्प चाहिए. और इसके लिए मैं लशियस को भी अंडरलाइन कर लेंगे. लशियस यानी जूसी, ठीक है ना, टेस्टी एंड जूसी जो होते हैं वो उसके ट्विग्स में उसके लिए तोड़ता था. ठीक है, इट वाज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कारी, मतलब कुछ ट्विग्स और कुछ उसके बीज या कुछ ऐसी चीज़ें अंडरलाइन करेंगे. सैपलिंग्स को भी, छोटे प्लांट जो होते हैं. फॉर कारी आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्री. मुझे पूरे सब तरह के पेड़ों पर चढ़ना होता था. टू फाइंड द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर. टेंडर को अंडरलाइन करेंगे, टेंडर यानी सॉफ्ट ट्विग्स के लिए. ठीक है, एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियन ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज. आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च when I suddenly heard Kari calling to me in the distance. As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. Kari का बुलाना ऐसा लगता था कि जैसे किसी बच्चे ने आवाज़ लगाई, और उसका फेवरेट था बनियन ट्री का खाना. ठीक है, सो आई थॉट somebody was hurting him. मुझे ऐसा लगा कारी मुझे आवाज़ दे रहा है तो शायद
शायद उसको कोई परेशान कर रहा है. So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. जहाँ मैं उसको छोड़ कर गया था उसके लिए खाना ढूंढने के लिए, मतलब कटिंग करने के लिए ये सब की, तो मैंने आके देखा वो वहाँ पे नहीं था. I looked all over but I couldn't find him. नहीं मिला मुझे. I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. I thought he was drowning. I was helpless because I couldn't jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. तो कहता है मेरे को ऐसे दूर से दिखा कि कुछ ऐसा स्ट्रगल कर रहा है पानी में, कुछ ब्लैक कलर का. तो मैंने सोचा कि अगर ये कारी डूब रहा है तो मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कारी को बचाना, इतना उसका वेट है, वो तो इतना ज़्यादा मेरे से बड़ा है. बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर, पिक्चर में जैसा शो किया. तब मैंने देखा कि उसकी जो बैक है वो पानी में ऊपर आई. सो एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगन टू ट्रम्पट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर. जैसे ही उसने मेरे को देखा तो ट्रम्पट इज़ द वॉइस ऑफ द एलिफेंट की आवाज़ को बोलते हैं ऐसे चिंगाड़ने को. एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, शोर को अंडरलाइन करेंगे, किनारे की तरफ आने के लिए वो मुझे ऐसे बुला रहा था. देन स्टिल ट्रम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम. स्ट्रीम यानी उस झरने में मैं गिर गया. आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ, और मैंने क्या देखा कि एक बच्चा गिरा हुआ है नदी में. ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवट अफ्लोट. ठीक है, वो पूरा ज़मीन पे नहीं था, मतलब कहीं ऐसे तैर सा रहा था, ऐसे पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा था. आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैग एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन. तो ऐसे उसकी पोस्चर ये था, इसके पोस्चर को डिसाइड किया कि उसका वो आधा शरीर तो मिट्टी में, उसके जो पैर थे वो पूरे सैंड में थे, और वो ऐसे कर रहा था कि जैसे उसका हाथ आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतजार कर रहा. आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय टू द सर्फ. मैं दोबारा पानी में गया और वो जो डूबता हुआ बच्चा था, ड्रॉनिंग को अंडरलाइन कर लेंगे, डूबता हुआ जो बच्चा था उसको सरफेस पे लेकर आया. नॉट बीइंग अ गुड स्विमर आई कुड नॉट स्विम अश्योर एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन. ड्रैग को अंडरलाइन कर लेंगे. मैं इतना बड़ा स्विमर तो नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मुझे आता था मैंने उसको श्योर पे लाने के लिए, श्योर यानी किनारे पे लाने के लिए बच्चे को ड्रैग किया. ठीक है. सीइंग अस ड्रिफ्ट इन द करंट, कारी हु वाज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक एंड केम हाफवे इनटू द वाटर वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक. आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द. और जैसे कि कारी जो एलिफेंट होते हैं, जो वो इतने स्लो चलते हैं, वो ऐसे होते हैं, वो एकदम से ऐसे एक हॉक की तरह आया, जैसे कि एक बहुत बड़ा बाज, एकदम स्पीडी. ठीक है, ऐसे वो आया और वो मेरे को फटाफट से, मैं पानी में डूबने लगा था और मुझे अपनी ट्रंक देकर बचाता है. दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow and in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. और मैंने उस बच्चे को भी, मतलब finally looking at the situation he was succeeded in saving the life of that child. Okay. एरो माने तीर की तरह. ठीक है, अंडरलाइन कर लेंगे वर्ड्स को. एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई लेफ्ट ए लेसो अराउंड माई नेक. लेसो को भी अंडरलाइन करेंगे, लेसो रोप को बोलते हैं. दिस फ्राइटेंड मी. आई थॉट दैट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी. आई हर्ड कारी स्क्विलिंग एंड आई नो इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक. ही पुल्ड अस बोथ अश्योर. और मेरी गर्दन के पास वो जो ब्लैक मेरे को जो लग रहा है कि रस्सी थी, वो रस्सी नहीं थी, वो कारी की ट्रंक थी, उसकी सूंड थी, जिसने हम दोनों को एक कोने में खींच लिया. श्योर पे हम आ गए. ठीक है. Now in the next part of the chapter we are going to read, Kari become fond of ripe bananas. He believes in self-help, much to the discomfort of his friend. With quiet dignity, Kari accepts the chiding he knows he deserves. Okay. Kari was like a baby boy. He had to be trained to be good, and if you don't tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. जैसे भी हम कोई भी पेट रखते हैं तो we used to guide them, instruct them, train them कि they should not misbehave at our house. तो इसी तरह से इन्होंने कारी को भी ऐसा किया. For instance, one day somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for ripe banana. किसी ने उसको बनाना खाने को दिए तो उसको बनानाज अच्छे लगने लगे.
We used to keep large plate of fruits on a table near the window in the dining room. हम ऐसे एक डाइनिंग रूम में अपने टेबल पे रखते थे फ्रूट्स. One day all the bananas on that table disappeared. और वो सारे के सारे बनाना चले गए और मेरी फैमिली ने नौकर के ऊपर ब्लेम लगाया कि उसने सारे फ्रूट खा लिया. Few days later दोबारा यही चीज़ रिपीट हुई and that time blame was put on me. तो इस बार ब्लेम जो मेरे ऊपर. But I know I had not done it. तो मुझे बड़ा मुश्किल होता था. मेरे पेरेंट्स एंग्री थे and the servant for I was sure they had taken all the fruit और सब मेरे से गुस्सा थे. The next time the fruit disappeared I found a banana all smashed up in Kari's pavilion. तो मैंने क्या देखा कि एक बिल्कुल ऐसे अंडरलाइन करेंगे स्मैश को, बिल्कुल ऐसे दबाया हुआ पिचकाया हुआ सा एक बनाना कारी के पवेलियन में पड़ा था. दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था कि वो फ्रूट खाता है, क्योंकि मैंने तो उसको हमेशा ट्विग्स खिलाए थे. तो ये उसको किसी ने बाहर से खिला दिया था तो उसको ये आदत हो गई थी शायद, ये मेरा इमेजिनेशन था. सो नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल विदाउट माई परमिशन, पेरेंट्स परमिशन. मैंने सोचा बिना मम्मी पापा से पूछे कुछ फ्रूट खाऊं. तभी मैं क्या देखता हूँ, अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. सारे बनाना उठाकर एक चीज़ ले गई. I was very much frightened को अंडरलाइन करेंगे. मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था because I had never seen snakes eat bananas. मैंने कभी नहीं देखा था कि जो सांप है वो बनानास खाते हैं. I thought it must be a terrible snake that would sneak को अंडरलाइन करेंगे in and take fruit. I crept को अंडरलाइन करेंगे. I crept out of the room with great fear and in my heart ran out of the house feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us. तो मैं तो सोचता था कि ये कोई खतरनाक सा स्नेक आ गया जो हमारे घर में स्नीक पीक लग रहा है, यानी देख रहा है, हमारे घर में झांक रहा है. और मेरा दिल बिल्कुल बाहर आ गया था और मुझे लग रहा था कि ये स्नेक हमारे घर के अंदर आके सारा फ्रूट भी खा जाएगा और हम सबको भी मार डालेगा. So as I went out, I saw Kari's bag disappearing in the direction of the pavilion and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. तो मैं जैसे ही बाहर निकला मैंने देखा कि कारी की जो बैग है वो डिसअपेयरिंग इन द पवेलियन की तरफ जा रहा है. तो मैं इतना डर गया कि मैं उसकी कंपनी में अपने आप को चेयर करने जा रहा था बिकॉज ही वॉज माई फ्रेंड. सो आई वेंट देयर टू चेयर मी अप. तो वो मैं जा रहा था तो इतने में मैंने क्या देखा कि वो सारे बनानास वहाँ पे खा रहे हैं अपने पवेलियन में. आई स्टूड स्टिल इन एस्टॉनिशमेंट को अंडरलाइन करेंगे, सरप्राइज होता है इसका मतलब हैरानी में, अमेज्ड. तो मैं ऐसे हैरान हो गया. द बनानास वर लाइंग स्ट्रूएन ऑल अराउंड हिम, स्ट्रूएन को अंडरलाइन कर लेंगे, इधर उधर बिखरे हुए थे. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग. दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक एंड आई रियलाइज दैट कारी वॉज द थीफ. तब मुझे पता चला कि चोरी करने वाला कारी ही है. आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स दैट इट वॉज कारी एंड नॉट आई दैट had eaten all the fruits these many weeks. इन हफ्तों से जो भी फ्रूट गायब हो रहे हैं वो कारी कर रहा है, मैं नहीं था. मैं उसको अपने पेरेंट्स के. Then I scolded him for elephants understand words as well as children and I said to him next time I see you stealing fruit you will be whipped. whipped को अंडरलाइन कर लेंगे, मतलब तुम्हारी चटनी बना दूंगा जैसे हम बोलते हैं ना. तो कह रहे जैसे बच्चों को डांटते हैं ऐसे ही मैंने कारी को डांटा. He knew that we were all angry with him. उसे पता था कि मेरे सर्वेंट्स भी इवन से एंग्री हैं, गुस्सा हैं. हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग. मतलब उसको इतना फील हुआ, मतलब सोचो कितनी जो एनिमल्स होते हैं दे आर ऑल्सो हैविंग माइंड, उनको भी पता चलता है, दे आर हैविंग हर्ट, उनको भी पता चलता है कि वी शुड नॉट हर्ट एनी वन, कि हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, या किसी की बात से अगर हम हर्ट हुए, हमारी प्राइड हर्ट हुई है तो हमें वो चीज़ रिपीट नहीं करनी चाहिए. तो उस एलिफेंट ने कभी उनके डाइनिंग रूम से कुछ नहीं चुराया और अगर उसको कोई फ्रूट देता था तो वो खा लेता था. एंड ही ऑलवेज स्क्वील्ड, यानी थैंक यू करता था ऐसे अपना सूंड हिला के. ठीक है. एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश फॉर हैविंग डन रॉन्ग बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन. उसको पनिशमेंट अगर आप उसकी गलती के लिए दोगे तो ही विल अंडरस्टैंड, और अगर विदाउट रीज़न आप उसको पनिश करोगे तो ही विल पे यू बैक इन योर ओन कॉइन का मतलब है आपको अपने ही अंदाज में वो जवाब देगा. ठीक है. कारी इज़ अ फास्ट लर्नर, ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड ही इज टॉट. देयर इज वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, कारी इज़ नो एक्सेप्शन. यानी अब इसमें बताया कि उसको क्या क्या इन्होंने सिखाया है कारी को. आफ्टर दिस
इंसिडेंट जो इनके घर में हुआ डाइनिंग रूम वाला। उसके बाद एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट, व्हेन टू गो स्लो। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं वैसे ही। तो अगर हम इसको धत वर्ड बोलते हैं और उसके कान को हल्के से पकड़ते हैं तो इसका मतलब होता है हम उसे बैठने को कह रहे हैं। सिमिलरली इफ़ यू से माली, अगर हम माली बोलते हैं और उसकी ट्रंक को फॉरवर्ड करते हैं तो इससे वो पता चलता है कि इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, अब मुझे वॉक करनी है। कारी लर्नड माली आफ्टर 3 लेसन, 3 लेसन के बाद ही वो माली सीख गया था, लेकिन उसको 3 वीक्स लगे थे धत सीखने में। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, बिल्कुल बैठ के खुशी नहीं होता था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, सो दैट व्हेन ही इज 2 or 3 years old you can only reach his back with a ladder। तो क्यों उनको धत बोलना सिखाया जाता है? क्योंकि वो तो 2 साल में इतना ऊंचा हो गया था कि तुम्हें उसकी बैक पे चढ़ने के लिए भी एक लैडर को अंडरलाइन करेंगे, सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत, ताकि आप उसके ऊपर क्लाइम करके, क्लाइम को अंडरलाइन कर लेंगे, क्लाइम करके ऊपर आराम से चढ़ सको। तो क्योंकि हर जगह आपको फिर लैडर को कैरी नहीं करना पड़ेगा अपने साथ। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। मास्टर कॉल उनकी होती है जिसको उसको सीखने में 5 साल लग जाते हैं। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग। क्या होती है मास्टर कॉल? एक स्ट्रेंज हिसिंग होलिंग साउंड होती है, जैसे कि स्नेक और टाइगर लड़ रहे हो आपस में, ऐसी आवाज़। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर, उसके कानों में आपको वैसी आवाज़ बनानी होती है। एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव द मास्टर कॉल? और आपको पता है उसका रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए, कैसे होता है? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सब कुछ ब्लैक है एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, ऊपर के सिर्फ स्टार्स आपको दिख रहे हैं स्काई में, बाकी सब ब्लैक है। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, आपको कहीं पर रुकना नहीं है, लेकिन आपको कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, तब हमें वो मास्टर कॉल करनी पड़ती है। एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम, पिक्चर में जैसा दिखा रखा है, फटाफट से मास्टर कॉल से जो एलिफेंट है वो पूरे के पूरे पेड़ को उखाड़ देता है, जिसकी वजह से जो एनिमल्स होते हैं आसपास के वो एकदम घबरा जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जैसे ही वो पेड़ गिरता है जो मंकीज होते हैं वो अपनी नींद से उठ जाते हैं। एंड दे स्टार्ट रनिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, यू कैन सी देम इन द मून लाइट एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो। स्टैग्स को भी अंडरलाइन कर लेंगे ना, डियर जो होते हैं उन लोगों, सब आपको दिखने लग जाएगा कि ये सारे जानवर इधर उधर भाग रहे हैं। यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। Even if he is frightened, then the elephant pulls down the next tree and the next and the next. Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house। तो इससे आपको रियलाइज़ होगा कि उसने सारे पेड़ उखाड़ के आगे आगे आपके लिए पूरा उसने जंगल से स्ट्रेट टू योर हाउस तक का, घर तक का रास्ता बना दिया है। इट वॉज रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी, ओके, एंड इट इज़ अ स्टोरी of Kari the elephant। Hope you all have understood it। About these question answers I'll send you on WhatsApp, ठीक है। Before coming to the live class, please do watch the video so that I can ask you questions and you can clear your doubts with me। Okay बेटा, have a nice day। जय शारदे माँ।